Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to lecture number 13 of Software Engineering 1. In today's lecture, we will be covering system sequence diagrams. Before we start discussion on system sequence diagrams, let's have a quick recap of our previous lectures. In fact, it will be a recap of last two lectures because we covered activity diagrams in the previous lectures. So we started off in the activity diagram. We discussed various very interesting concepts. First of all, we identified that why do we need to use these activity diagrams and where do they fit in the big course of software engineering. So the most relevant use that we find of activity diagrams related to software engineering is, first of all, before even getting to that, activity diagram is a special case of flowchart. We saw that. But the key difference between a flowchart diagram and an activity diagram is that activity diagrams, it allows concurrency. It allows the activities to occur in parallel. So it provides concurrent execution. That is the key difference between activity diagram and any normal flowcharts. Then we saw that activity diagram, they are used to basically expand or understand the flow in the use cases. Similarly, if we have multiple use cases, then activity diagrams, they can be used to understand the flow between different use cases. Okay, because let's say we have 5 use cases in our system, depending on the different actors that we have in our system, and we want to understand that how the information will be flown between different use cases, then we can do that using activity diagrams. And where do they fit in? They are normally followed after the use cases because we want to understand the use cases, so that's their ideal place, that we basically want to create activity diagrams once we have those use cases. In terms of activity diagrams, we discussed the concept of actions, we discussed the concept of pins and activities, similarly. Then we saw that what kind of nodes are there. Then we saw the activity edges. Okay, we discussed that was the first lecture on activity diagram, where we discussed the basics. Okay, that what kind of nodes are there. The different kind of nodes that we discussed in the first lecture was that first we have a rounded rectangle. Now that's an activity. Okay, then we saw we have decision nodes. Decision nodes के दो काम होते हैं. एक काम तो ये होता है कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक इनपुट आई है और इफ इट्स यस तो हम एक काम करते हैं, अगर नो है तो हम कोई और काम करते हैं. दैट वाज वन यूज ऑफ डिसीजन नोड. अदर यूज क्या था कि डिसीजन नोड कैन बी यूज्ड टू एक्सेप्ट मल्टीपल इनपुट्स, यानी कि मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं और दे आर गोइंग टू मल्टीपल सोर्सेज. ठीक है, दैट वाज अनदर थिंग दैट वी डिड यूजिंग डिसीजन नोड्स. लेकिन इसके अंदर मसला क्या था कि जैसे जैसे इनपुट आती जाती है वी कीप ऑन सेंडिंग इट. ठीक है, another kind of nodes that we discussed was these bars. Okay, although they look similar, लेकिन ये दो तरह की थी. One was fork और दूसरे को हमने नाम दिया था join का. ठीक है, fork क्या करता है, fork के ऊपर अगर एक इनपुट आ रही हो तो ये मल्टीपल एजेस के ऊपर उसको भेज देता है. ठीक है, fork का फायदा क्या होता है कि it can duplicate tokens, यानी कि whatever token came here it will be flown here, here and here. और जो join क्या करता है, join is basically used for synchronization, यानी कि मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं लेकिन you do not want to go to the output unless and until there is a token on all of them. ठीक है, यहाँ we can also specify condition कि किन किन के ऊपर हो तो इसके ऊपर आउटपुट जाएगी, तो we can use join for that. Similarly फिर हमने देखा था कि हमारी initial node क्या होती है, it's basically a filled circle. फिर we saw कि हमारी flow final node होती है and then we have a final node, यानी कि ये दो nodes होती हैं जिनके ऊपर हमारा flow terminate कर जाता है और ख़त्म हो जाता है. ठीक है जी. So those were the different kinds of nodes that we discussed. Then we also discussed कि pins हमारी किस तरह की होती हैं, object nodes क्या होती हैं. ठीक है जी. In lecture number 12 or the second lecture on activity diagrams, we discussed some more notations. ठीक है, we discussed how can we partition activities and what is the benefit of partitioning activities. We saw कि through partitioning activities we can partition our system and group activities which are associated to a certain business unit. या हम दूसरी तरह की पार्टीशनिंग किस बेसिस के ऊपर कर सकते हैं कि हमारी एक्टिविटीज हैं उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं एंड दीज पैरामीटर्स आर कॉमन अक्रॉस मल्टीपल एक्टिविटीज और अक्रॉस मल्टीपल एक्शंस, तो हम उन सबको एक ग्रुप कर देते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज वन वे ऑफ पार्टीशनिंग. और उस पार्टीशनिंग की बेसिस के ऊपर हम, और ये पार्टीशनिंग हमने पढ़ा था कि दिस पार्टीशनिंग कैन बी इन फॉर्म ऑफ लेन्स या मल्टी डायमेंशनल पार्टीशनिंग भी हो सकती है. Then we saw that with activities we can specify preconditions and postconditions, and these pre and post conditions they would basically mean कि अगर तो precondition complete नहीं हुई तो हमारा ये flow start ही नहीं होगा, और post condition का मतलब क्या कि जब ही हमारा flow खत्म होगा तो ये post condition satisfy होनी चाहिए.
Then we saw different kinds of events, जिसमें सबसे पहला था send signal action, which is between two activities or two actions. और ये send signal action करता क्या है कि it basically just a signal event जो कि दूसरे action को बताता है कि अब तुम ये काम कर दो. That's it. Then we saw time triggers and time events. Time triggers and time events के अंदर हमने दो तरह के triggers देखे थे, एक absolute time trigger था और एक relative time trigger था. Relative time trigger is relative to the system, whereas absolute की definition क्या है कि if you know that you want to do something on a certain date, so you can write that expression कि do this on a certain date, and then it generates that particular event. Then we saw the concept of except event action. ठीक है, ये इनके symbols भी जरा एक दफ़ा हम revise कर लेते हैं कि जो send signal action था उसका symbol कुछ इस तरह से था, जबकि एक्सेप्ट इवेंट एक्शन का सिंबल किस तरह से था, इट वाज समथिंग लाइक दैट. ठीक, फिर एक और इसके अंदर हमने पढ़ा था वेट टाइम एक्शन. वेट टाइम एक्शन क्या था, इट यूज्ड टू टेल कि कितनी देर वेट करना है एंड देन यू विल डू अ सर्टेन थिंग, और वी कैन हैव एजेस गोइंग आउट ऑफ देम. ठीक है, व्हिच वुड से कि अब ये काम हो गया तो अब आप ये वाला काम करें. Then there are two particular regions that we saw कि we can have in our activity diagram. एक को हमने कहा था interruptible activity region. Interruptible activity region, as the name suggests, कि that region specifies कि in an activity diagram if you want to interrupt the flow, ठीक है, for whatever reason कोई event occur होता है जिसकी वजह से आप अपने flow को रोकना चाहते हैं, तो you will have an edge going out of that interruptible activity region. Whenever the token flows through that, तो आपका flow interrupt हो जाएगा या flow will stop. ठीक है. Then we saw the concept of exceptions. ठीक है, and exception की example बड़ी interesting सी थी कि for example we have this प्रोटेक्टेड नोड. प्रोटेक्टेड नोड हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस प्रोटेक्टेड नोड के ऊपर जो इनपुट आ रही है देयर कैन बी एक्सेप्शंस इन इट. ठीक है, और इसकी हमने एग्जांपल बड़ी अच्छी सी देखी थी. वी डिस्कस्ड कि फॉर एग्जांपल हमारे इसके अंदर वी आर ओनली एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग्स. ठीक है, लेट्स से ये हमारी पेन, हम इसके ऊपर सिर्फ स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं और बीच के अंदर हमारे पास इंटीजर आ जाता है, तो वी विल हैव अ लिंक गोइंग आउट जो कि यहाँ पे क्या करेगा, मैच करेगा कि कौन सा एक्सेप्शनल हैंडलर इस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हैंडल करेगा. ठीक है, अब एक्सेप्शनल हैंडलर दो तरह के काम कर सकते हैं. यहाँ तो एक्सेप्शनल हैंडलर क्या करेगा कि हमारे फ्लो को रोक देगा. ठीक है, और इट विल हैंडल द प्रॉब्लम एंड द फ्लो विल कंटिन्यू. जिस तरह इसी केस के अंदर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की एक इनपुट की स्ट्रीम आ रही है, बीच में एक इंटीजर आ जाता है, तो एक्सेप्शनल हैंडलर बड़ा आसान सा काम क्या कर सकता है कि इट कैन इग्नोर दैट इंटीजर और अगली इनपुट को चलने दे, और इट कैन जस्ट स्टॉप द प्रोग्राम एंड से नो 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 देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर. ओके, और हमने एक और चीज क्या डिस्कस करती है एक्सेप्शन से रिलेटेड कि इफ द सिस्टम कैन नॉट फाइंड अ एक्सेप्शन हैंडलर, तो हम उसके केस के अंदर एक जेनेरिक एक्सेप्शन हैंडलर भी लिख सकते हैं और हम अपने सिस्टम के एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं, फ्लो को रोक सकते हैं, और हमें अपने सिस्टम की स्टेट का फिर नहीं पता होगा, लेकिन वी नीड टू स्पेसिफाई दैट. Then we saw the concept of expansion region कि we can have if an action or a set of actions can have multiple inputs, तो we can have expansion regions. ठीक है, expansion region क्या करते हैं कि example of expansion region कैसी थी कि for example ये हमारा expansion region है और इसके अंदर यहाँ पे multiple pins है जिनके अंदर multiple values आ रही हैं और ये हमारी अंदर activities है. और expansion region से जो ये अगर फॉर एग्जांपल इस एक्सपेंशन रीजन से इसमें जो एक्टिविटीज आनी है हमेशा कॉरिस्पॉन्डिंग के अंदर आती हैं. ठीक है, यानी कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है उसी एक्सपेंशन रीजन की, तो ये इनपुट अगर 1 वाली प्रोसेस होगी तो ये इसी में आएगी आउटपुट में, इसी तरह 2 वाली जब प्रोसेस होगी तो 2 वाली में आएगी, 3 वाली जब होगी तो 3 वाली में आएगी, 4 वाली जब होगी तो 4. और वी सॉ कि देयर आर 3 डिफरेंट वेज कि ये इनपुट आउटपुट के अंदर आ सकती है. एक तो हमने कहा था पैरेलल, दूसरी थी आइटरेटिव और तीसरी थी स्ट्रीम की फॉर्म में. So that was the concept of expansion regions, and finally we discussed swim lanes. Swim lane was related to activity partitioning कि जब हम अपनी activities को different groups के अंदर divide कर देते हैं तो we can make those swim lane diagrams, और swim lane is actually the same diagram लेकिन we group the activities related to certain groups in lanes. So that was our lecture or discussion on activity diagrams. In today's lecture, as I already told you, that we will be discussing system sequence diagrams. We'll see what a system sequence diagram is and how do we start making a system sequence diagram and what are the particular notations in UML for system sequence diagrams. So these are the contents of today's lecture. We will start off with use case description. Okay. Although we have already discussed when we had our lecture on the use case diagrams that for each use case that we make we have its description, और description के अंदर हमने देखा था use case का नाम होता है, उसकी ID होती है, उसकी एक brief से description होती है, फिर एक पूरा set of events होता है कि ये वाला काम होगा फिर दूसरा काम होगा. हम नंबर वाइज करके लिखते हैं कि पहले एक्टर ये काम करेगा, दूसरे नंबर पे ये काम करेगा, तीसरे नंबर पे ये काम करेगा. ठीक है, तो that was the use case description, and we will see why we actually will discuss use case description in the system sequence diagrams.
Then we'll see कि these description they are basically used to make those system sequence diagrams because we want to identify the objects and operations. और जब तक हम objects और operations identify नहीं करते तब तक हम system sequence diagram बनाना ही start नहीं कर सकते. And then we will look at the particular notation of system sequence diagrams, and finally we will discuss a couple of examples related to system sequence diagrams. Okay जी, first of all let's have a recap कि हमारी use case की description के अंदर क्या क्या होता है. I already told you that the first and the most important thing in the use case description is it's its name. यानी कि every use case that you have would have a name in it. ठीक है, जिस तरह हम use case वाले lecture के अंदर we repeatedly discuss the example of human resource management solution. तो for example अगर आप उसका use case बना रहे हैं तो HR manager के interaction का, तो you can say कि HR manager interaction with the system या जो भी इसका आप कह देंगे इसका मेरा use case है. ठीक है, तो यू कैन हैव अ नेम. देन यू कैन स्पेसिफाई द एक्टर्स. जिस तरह इस एचआर मैनेजर वाले यूज केस के अंदर हमारे एक्टर्स कौन कौन होंगे. वन एक्टर वुड बी द एचआर मैनेजर, दूसरा एक्टर कौन होगा, एम्प्लॉइज होंगे मे बी. ठीक है, देन वी हैव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के अंदर वी राइट 2 or 3 लाइन्स कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस, दैट वी आर सेइंग कि जी एचआर मैनेजर वुड log into the system and he will see the reports of all the employees coming in on the daily basis. He can generate reports on the monthly basis, blah blah blah. ठीक है, लेकिन this is not the actions that, और this is not the ordering कि किस इस जो brief description हम देते हैं उसके अंदर हम ordering of action नहीं बताते कि पहले ये काम करेगा HR मैनेजर, दूसरे नंबर पे ये काम करेगा. उसके लिए we have a separate space जिसके अंदर हम कहते हैं कि actions taking place और the flow of events. इसके अंदर हम एक एक करके numbering करके 1 2 3 करके हम बताते हैं कि ये काम होगा. ओके जी, लेकिन कुछ यूज केसेस इफ वी हैव अ वेरी सिंपल यूज केस तो उसके अंदर तो जो नॉर्मल फ्लो होगा या नॉर्मल जो सिनेरियो होगा वो चलता रहेगा. लेकिन इन सम यूज केसेस देयर आर अल्टरनेटिव सिनेरियोज. अल्टरनेटिव सिनेरियो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन पॉइंट आ जाता है यूज केस के अंदर, देन देयर इज अल्टरनेट सेट ऑफ एक्शंस दो फिर आपका एक्टर लेगा. तो यू कैन आल्सो डू दैट. एंड फाइनली वी कैन हैव द प्री कंडीशंस एंड द पोस्ट कंडीशंस इन द यूज केस डिस्क्रिप्शन. ओके जी, नाउ दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ यूज केस डायग्राम जिसमें एक क्लब की मेंबरशिप का सिस्टम को मॉडल किया हुआ है. ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल ये जो आपका ऑर्डर है, ये जो आपका क्लब मेंबर है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, ही कैन, अब ये हमारा ऑर्डर का सब सिस्टम है, उससे रिलेटेड जितने भी यूज केसेस हैं वो हमने यहाँ पे बनाए. ये पूरे एक सिस्टम की यूज केस डायग्राम है. इसके अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट सब सिस्टम्स है. जिस तरह ये प्रमोशन का सब सिस्टम है और ये आपका मेंबरशिप का सिस्टम है. जो तो आपके क्लब के मेंबर्स हैं दे कैन सबमिट रेगुलर ऑर्डर रिक्वेस्ट, दे कैन सबमिट प्रमोशन ऑर्डर. ठीक है, इसी तरह जो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है सेल्स रिपोर्ट, ये हमारे ऑर्डरिंग सब सिस्टम से. एंड देन व्हाट दिस मार्केटिंग डिपार्टमेंट दे कैन डू, दे कैन क्रिएट न्यू सीजनल प्रमोशन, क्रिएट न्यू मंथली प्रमोशन एंड रिक्वेस्ट प्रमोशन रिपोर्ट्स. यानी कि जो क्लब मेंबर्स हैं वो इन प्रमोशन की बेस के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक क्लब ने ऑफर किया है जी कि इन दिस समर इफ यू प्ले 2 गेम्स ब्ला 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 तो आपको इतनी गेम्स फ्री में मिलेंगी. ठीक है, तो उसकी बेसिस के ऊपर लोग जितने भी उस ऑर्डर के ऊपर आके, उस प्रमोशन के ऊपर आके ऑर्डर करते हैं तो ये मार्केटिंग वाले उसकी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह इस यूज केस में और क्या हो रहा है कि जो मेंबर सर्विस सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो इट सेंड्स द क्लब प्रमोशन. ठीक है, इट सेंड्स न्यू सब्सक्रिप्शन ऑफर और सेंड सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल ऑफर. यानी कि फॉर एग्जांपल जो नए मेंबर हैं उनको भी सब्सक्रिप्शन ऑफर भेजता है और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनको जब रिन्यू करानी होती है अपनी सब्सक्रिप्शन तो उसकी भी यही भेजेगा जो आपका ये मेंबर सर्विसेज सिस्टम है. इसी तरह जो पोटेंशियल मेंबर्स हैं व्हाट दे कैन डू, दे कैन सबमिट न्यू सब्सक्रिप्शंस. ठीक है, और जो आपका ये मेंबर सर्विसेज डिपार्टमेंट है एक और काम ये क्या कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट मेंबरशिप रिपोर्ट्स. रिक्वेस्ट मेंबरशिप रिपोर्ट्स क्या, फॉर एग्जांपल पोटेंशियल मेंबर्स ने 15-20 जितने भी मेंबर्स ने अप्लाई किया तो यू कैन सी कितने लोगों ने अप्लाई किया. और दिस इज अ बिग सिस्टम और ये उसकी यूज केस डायग्राम बनी हुई है. ओके जी, इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें जो सबमिट प्रमोशन ऑर्डर की, ठीक है, हम सिर्फ इस वाले केस की इस यूज केस की डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, सिर्फ सबमिट प्रमोशन ऑर्डर. इसके अंदर हमारा एक्टर कौन है, आवर एक्टर इज ओनली क्लब मेंबर. अगर आप इस यूज केस की डिस्क्रिप्शन देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़ें कि इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस व्हेन अ क्लब मेंबर सबमिट्स अ क्लब प्रमोशन ऑर्डर टू आइदर इंडिकेट द प्रोडक्ट्स they are interested in ordering or declining to order during this promotion. So basically ये जो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन है और अभी इसके अंदर मैंने ऑल्टरनेट कोर्स वाला चीज़ नहीं दिखाई, वी हैव ओनली शोन द नॉर्मल कोर्स. तो इसके अंदर अगर हम नॉर्मल कोर्स देखें तो इसके अंदर क्या होगा, दिस यूज केस इज इनिशिएटेड व्हेन द क्लब मेंबर सबमिट्स द प्रमोशन ऑर्डर टू बी
प्रोसीजर, यानी कि जब भी हमारा क्लब मेंबर ये वाला काम करेगा, प्रमोशन ऑर्डर को सबमिट करेगा, तो हमारा ये वाला यूज केस स्टार्ट हो जाएगा. The club members' personal information such as address is validated against what is currently recorded in the member services. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी यूज केस डायग्राम बनानी स्टार्ट करें इन सेट ऑफ एक्शंस के ऊपर, यानी कि जो पूरा हमारा यूज केस था, सबमिट प्रमोशन ऑर्डर, ठीक है, इसकी कैसी डायग्राम बनेगी कि सबसे पहले तो इसने रिक्वेस्ट की, जिसके ऊपर क्या हुआ कि इसकी इंफॉर्मेशन वैलिडेट की गई, ठीक है, और इंफॉर्मेशन वैलिडेशन के बाद ये जो अगला काम क्या हुआ, द प्रमोशन ऑर्डर इज वेरीफाइड टू सी इफ द प्रोडक्ट इज बीइंग ऑर्डर्ड, यानी कि अब कस्टमर ने तो एक प्रमोशन कर लिया, हो सकता है वो प्रमोशन अब एक्सपायर हो गई हो, ठीक है, तो इन दैट केस समथिंग एल्स वुड हैपन, ठीक है. और द क्लब मेंबर्स क्रेडिट स्टेटस इज चेक्ड विद द अकाउंट्स रिसीवेबल टू मेक श्योर नो पेमेंट्स आर आउटस्टैंडिंग. फिर जब आपने एक पर्टिकुलर ऑर्डर किया है तो अकाउंट्स वाले भी बीच में आ जाएंगे, जिनसे आप चेक करेंगे कि यार इस बंदे का क्रेडिट स्टेटस क्या है, वेदर ही ओज समथिंग टू द क्लब और हिज अकाउंट इज क्लियर, ठीक है. For each product being ordered, validate the product number. For each product being ordered, check the availability. ठीक है, for example, customer has ordered for something and it's not available, then you need to notify the customer कि जी something is out of stock or something. ठीक है, और create a picking ticket for the promotion order containing all the ordered products which have a status open and route the packing ticket to the warehouse. ठीक है, now this is just an example कि आपके एक यूज केस की डिस्क्रिप्शन कितनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, यानी कि ये वाली जो हमारी डायग्राम है, दिस इज काइंड ऑफ अ समरी ऑफ द ऑल द यूज केस डायग्राम्स, ठीक है. अब इनके अंदर जो पर्टिकुलर यूज केसेस है, फॉर एग्जांपल ये सबमिट प्रमोशन ऑर्डर है, इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं. जिस तरह सबमिट प्रमोशन ऑर्डर के अंदर हमने देखा हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो हमारा मेंबर है भी कि नहीं है. फिर जब उसने ऑर्डर प्रमोशन के लिए ऑर्डर की चीज़ जो भी प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट की है ऑर्डर की, वो देखेंगे कि यार ये प्रमोशन एक्सपायर तो नहीं कर गई. फिर हम देखेंगे कि ऑर्डर के अंदर जो आइटम्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है. फोर्थ थिंग दैट वी विल सी, हम इस कस्टमर का क्रेडिट स्टेटस चेक करेंगे कि रिसीवेबल्स के थ्रू कि क्या ये बंदा कुछ ओ तो नहीं करता क्लब को. इफ ही ओज समथिंग टू द क्लब तो देन वी कैन कैंसिल द ऑर्डर, वी कैन इन्फॉर्म द कस्टमर कि जी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ पेमेंट एंड देन डू दैट. ये ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन के अंदर आ सकता है, ठीक है. तो वी कैन एक्सपैंड दीज यूज केसेस. तो अ यूज केस डिस्क्रिप्शन इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उससे हमें अपने पूरे सिस्टम का बहुत अच्छी तरह डिटेल में पता लग जाता है कि इस सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑपरेशन होंगे. ओके, नाउ अच्छा जी, नाउ हाउ कैन वी यूज दीज. Now you will be thinking what is the purpose, why are we discussing use case descriptions again here? The purpose of discussing use case description in the system sequence diagram is that they help us in identifying multiple things, ठीक है जी, and they are useful in constructing these system sequence diagrams. पहली चीज जो हमें system sequence diagrams के लिए चाहिए होती है that is an actor, ठीक है, क्योंकि हमें system diagram के अंदर हमेशा एक actor कोई इवेंट को इनिशिएट करेगा जिसके ऊपर हमारा कोई भी सिनेरियो या कोई भी सीक्वेंस हमारे सिस्टम के अंदर स्टार्ट होगा, ठीक है, एंड दैट वी कैन डू थ्रू यूज केसेस. सेकंड थिंग दैट वी यूज और वी नीड इन अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम आर द नाउन्स और द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. और वी सॉ इन अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ क्लास डायग्राम्स, हमने ये देखा था कि हम ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू दीज यूज केस डिस्क्रिप्शंस, या हमारे कोई भी प्रोसेसिंग नैरेटिव्स हैं, किसी भी फॉर्म की हमारी रिटन डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है प्रोडक्ट की, तो वी कैन यूज दैट टू आइडेंटिफाई द नाउन्स. एंड फाइनली वी नीड ऑपरेशंस कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा काम करेगा, एंड दैट वी कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई थ्रू गोइंग थ्रू दीज यूज केस डिस्क्रिप्शन. जब भी हम इनका ग्रामेटिकल पार्ट्स करेंगे तो वी कैन आइडेंटिफाई और वी कैन लुक एट कि ये इन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन क्या होगा, एंड दीज आर कॉल्ड दी ऑपरेशंस, जो कि बेसिकली वर्ब्स होते हैं. जब हम ग्रामेटिकल पार्ट्स करते हैं तो ऑल द वर्ब्स दे आर नॉर्मली द इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ओके जी, नाउ दिस इज एन एग्जांपल दैट वी ऑलरेडी सॉ. Let's have a quick go through this example again. We'll quickly go through this example again. We will try to identify the objects in the first instance. तो करना क्या होता है, हमने इस पूरे को पढ़ के इसका grammatical parts करना होता है. जिस तरह अगर हम इसकी पहले पैराग्राफ को पढ़ें कि the safe home security function enables the homeowner to configure the system when it is installed, monitor all the sensors connected to the security system and interacts with the homeowner through the internet, PC or a control panel. अब अगर हम इस पूरे को पढ़ें तो इसके अंदर से अगर हम नाउन्स निकालें तो ये जो बोल्ड किए हुए मैंने जितने भी चीज़ें, ये सारे नाउन्स हैं. जिस तरह द सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन, दैट एक नाउन तो हमारा ये हो गया, एक नाउन हमारा हो गया होम ओनर,
देन वी हैव अ नाउन विच इज सिक्योरिटी सिस्टम, फिर हमारे सेंसर्स नाउन है, एंड देन वी हैव आवर कंट्रोल पैनल और इंटरनेट और पीसी। ये सारे हमारे नाउन्स हैं इस पहले पैराग्राफ के अंदर। इसी तरह अगर हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ें तो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन द सेफ होम पीसी इज यूज्ड टू प्रोग्राम एंड कॉन्फ़िगर द सिस्टम, ईच सेंसर इज असाइंड अ नंबर, टाइप, मास्टर पासवर्ड। ये सारे भी नाउन्स हैं, ठीक है। तो वी जब भी हम ग्रामेटिकल पार्ट्स करते हैं तो वी एंड अप विद लॉट ऑफ नाउन्स, ठीक है। और हमने देखा था कि हमारे जो भी नाउन्स होते हैं दे कैन बिकम क्लासेस, ठीक है। तो हम इन सबको क्या कहते हैं, जितने भी नाउन्स होते हैं वी कॉल देम पोटेंशियल क्लासेस, ठीक है। पोटेंशियल क्लासेस क्यों कहते हैं, क्लासेस क्यों नहीं कहते, क्योंकि सारे के सारे हमारे सोल्यूशन के अंदर क्लासेस या ऑब्जेक्ट्स नहीं बन सकते, क्योंकि इट वोंट बी पॉसिबल। तो हम करते क्या है, हमने देखा था कि वी हैव अ क्राइटेरिया जिसको हमने कहा था सिलेक्शन क्राइटेरिया, और उसके अंदर हमने देखा था 6 चीज़ें थी। वी विल डिस्कस देम अगेन व्हेन वी विल डिस्कस क्लास डायग्राम्स, लेकिन यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द प्रीवियस लेक्चर, यू कैन सी एट व्हाट दोस 6 क्राइटेरियन वन। उसमें एक था रिटेन इन्फॉर्मेशन, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल ऑपरेशन और एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। वी हैव 6 ऑफ दोस क्राइटेरियंस। हमने कहा था जितने भी हम नाउन्स आइडेंटिफाई करते हैं उन सारे नाउन्स को इन 6 के 6 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो जो नाउन इन 6 के 6 क्राइटेरियाज के पूरे पूरे उतरते हैं उनको हम अपने सोल्यूशन के अंदर क्लासेस बना लेते हैं, जो नाउन्स बाकी बच जाते हैं, ठीक है। यानी कि होगा क्या कि हमारे पास नाउन्स आए, उसके अंदर से कुछ तो हमने बना ली क्लासेस, जिन्होंने इन 6 के 6 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया वो सारी क्लासेस बन गई। जिन्होंने नहीं किया उनको हम एट्रीब्यूट्स बना लेते हैं इन क्लासेस का। जो भी नाउन जिस क्लास से क्लोजली लिंक्ड होगा उसको हम उस क्लास का एट्रीब्यूट बनाते जाएंगे, ठीक है। तो the first thing that we do when we want to create this system sequence diagram is that we need to identify the objects or we want to know what are the classes in our system। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम अपना सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि यूज केस डिस्क्रिप्शन भी हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज प्रोसेसिंग नैरेटिव्स इन दिस, वी कैन यूज एनी अदर रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर प्रोग्राम दैट वी हैव, उसके अंदर से हम नाउन्स आइडेंटिफाई करके वी कैन यूज दैट टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फॉर द सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स। अच्छा जी, नाउ द सेकंड थिंग इज कि इन ऑब्जेक्ट्स ने करना क्या है, क्योंकि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम क्या बताती है, इट बेसिकली आइडेंटिफाइज कोई भी आपका एक काम है कि एक्टर ने सिस्टम के अंदर कोई भी इवेंट जनरेट किया है, ठीक है। तो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम क्या बताती है कि ये वाला इवेंट हैंडल करने के लिए आपका सिस्टम किस किस ऑब्जेक्ट के पास गया, कौन से ऑब्जेक्ट ने इसके ऊपर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किया, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट्स तो आ गए, फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, ऑब्जेक्ट ए आ गया हमारे पास, एक हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट बी, लेकिन अब इनके दरमियान इंटरेक्शन भी तो हमने आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज वी वांट टू नो कि कौन सा ऑब्जेक्ट क्या वाला क्या काम करेगा। एंड दिस इज डन बाय आइडेंटिफाइंग द वर्ब्स इन द ग्रामेटिकल पार्ट, यानी कि वही हम करेंगे कि वट एवर रिटन डिस्क्रिप्शन वी हैव, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ यूज केस डिस्क्रिप्शंस और प्रोसेसिंग नैरेटिव्स, हम उसको पढ़ेंगे, उससे हम वर्ब्स निकालते हैं। और जो वर्ब्स जिस क्लास से क्लोजली लिंक्ड होते हैं हम कहते हैं कि जी ये इस क्लास का ऑपरेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन इनेबल्स द होम ओनर। अब ये जो इनेबल्स होगा ये सेफ होम सिक्योरिटी फंक्शन का वर्ब होगा। इसी तरह कन्फिगर जो है, कौन कन्फिगर कर रहा है, होम ओनर कन्फिगर कर रहा है। तो इफ होम ओनर वाज सिलेक्टेड एज अ क्लास तो मे बी कन्फिगर इज एन ऑपरेशन ऑफ द होम ओनर, ठीक है। तो दिस इज हाउ ऑल द वर्ब्स दे आर नॉर्मली कैटेगराइज्ड एज द ऑपरेशंस, और जो जिस क्लास से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑल द वर्ब्स दैट वी गेट वी से कि दीज आर ऑपरेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, ठीक है। और दे आर यूज्ड बाय ये बेसिकली इंटरेक्शन का सोर्स होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन व्हेन वी क्रिएट सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स। ओके जी, तो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम पहली बात तो ये हम बनाते क्यों हैं, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स? नंबर 1 इज इट इलस्ट्रेट्स हाउ ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। वी वॉन्ट टू नो कि हमने अपने सिस्टम के जो जो ऑब्जेक्ट्स अब आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो आपस में कैसे बातचीत करेंगे, ठीक है। कोई एक सर्टेन इवेंट आता है, उसकी बेसिस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। द सेकेंड थिंग इज इट एम्फसाइजेस द टाइम ऑर्डरिंग ऑफ मैसेजेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्रू अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम हमें ये भी पता लग जाता है कि कौन सा इवेंट किस सीक्वेंस में ऑकर हुआ था, यानी कि कौन से ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन किस सीक्वेंस में हुई थी। तो वी कैन एक्चुअली लिटरली सी कि ये वाला अगर इवेंट आएगा तो पहले नंबर पे ये काम होगा, दूसरे नंबर पे ये काम होगा, तीसरे नंबर पे ये काम होगा। और इन अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम व्हेन यू मेक दैट सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम तो इट शुड एक्चुअली डिपिक्ट दैट, ठीक है। इट शुड एक्चुअली शो, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए, अच्छा पहले ये काम हो रहा है, दूसरे नंबर पे ये काम हो रहा है, तीसरे नंबर पे ये काम हो रहा है। एंड फाइनली इट कैन मॉडल सिंपल सीक्वेंशियल फ्लो
branching, iteration, recursion and concurrency. So there are multiple things that we can model through system sequence diagram. जिस तरह हमने activity diagrams के अंदर देखा था कि उसके अंदर भी हम concurrency को मॉडल कर सकते हैं. It can also model the flow. लेकिन what is the difference between activity diagram and a system sequence diagram? कि it shows the time ordering of the messages, which is very important. कि हमें पता लग जाता है कौन सा काम पहले हो रहा है और कौन सा काम बाद में हो रहा है. ठीक है. Similarly, ये objects का interaction भी दिखाती है. This is very important. Okay जी. Now this is right now I do not want you to worry about कि हमने ये कहाँ से ढूंढा, ये क्या है, लेकिन these are all the objects. जिस तरह member, if member is our class, तो library member it's an object. इसी तरह if book is our class, तो book is our object. इसी तरह book और उसकी copy that's an object. अच्छा जी. Now let's see कि what are the things that we have in this what are the things that we can have in a system sequence diagram. तो अगर हम इसको कहें कि जी हमारे दो एक्सेस हैं, these are the x axis and these are the y axis, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें, this is the message. ठीक है. ये जो हमारे एजेस के ऊपर जा रहा होता है we call it a message. जिस तरह यहाँ पे कोई एक्टर होगा, ठीक है, जिसको हम कह देते हैं कि यूज़र है, लाइब्रेरी का यूज़र है, उसने एक फंक्शन भेजा which was a borrow book. ठीक है. Now this is an interaction happening between this user and this member कि he has request to borrow a book. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि we have this big rectangle. ये rectangle हमें क्या बता रही है कि ये वाला जो क्लास है या ये वाला जो ऑपरेशन है ये कंप्लीट होने में कितनी देर लेगा. ठीक है. क्योंकि अगर मैंने बुक बोरो करने की रिक्वेस्ट की है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी चेक बिफोर मुझे वो बुक बोरो करनी चाहिए. पहली चीज़ तो क्या चेक की जाएगी, वेदर आई एम अ मेंबर ऑफ दिस लाइब्रेरी और नॉट. सेकंड चीज़ क्या चीज़ जाएगी, मेरे पास बुक्स और इशू मैं करा भी सकता हूँ या मैक्सिमम लिमिट को रीच कर चुका हूँ. तो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट नीड टू बी चेक्ड एंड ओनली देन आई शुड बी अलाउड टू इशू द बुक. ठीक है जी. तो इस फ्लो के अंदर भी क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो ये चीज़ चेक की जा रही है कि वेदर द पर्सन हु इज़ एक्चुअली देयर ही इज़ अ मेंबर और नॉट. सो हियर वी आर चेकिंग दैट इफ़ आई एम अ मेंबर तो मेरा स्टेटस क्या है, ओके हो जाए. ठीक है. और जब मेरा स्टेटस ओके हो जाएगा तो मैं यहाँ पर चेक करने जा रहा हूँ कि इस मेंबर को, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या जा रही है कि इस मेंबर को ये बुक बोरो करनी दी जाए. ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं जाके चेक कर रहा हूँ उस बुक के अंदर कि क्या वो बुक टेकन है या नहीं है. ठीक है. ठीक है. और बुक अगर टेकन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बुक की कोई कॉपी अवेलेबल है कि नहीं है. अच्छा, इसके अंदर इस सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर देयर आर मल्टीपल थिंग्स. एक तो हम देखें कि हमारे एक्स एक्सिस के ऊपर सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हमारा टाइम है. अब हमने कहा था कि हमें सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम को देखते ही पता लग जाता है कि टाइम ऑर्डरिंग पता लग जाती है एक्शंस की. अब इस अगर डायग्राम के अंदर देखें तो हमें पता लग रहा है सबसे पहले काम के ऊपर ये काम हुआ है कि बुक बोरो करने की रिक्वेस्ट आई है. सेकंड नंबर पे ये काम हुआ है कि ये चेक किया जा रहा है कि जो बंदा जिसने बुक बोरो करने की रिक्वेस्ट की है ये लाइब्रेरी का मेंबर है कि नहीं है और ये बुक इशू करा सकता है कि नहीं करा सकता. ठीक है. उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक फ्लैग सेट कर दिया कि ओके, if it's allowed to, if a certain person is allowed to borrow a book, so status is okay. On that basis हमने तीसरा एक्शन क्या कर रहे हैं कि हमने उस बुक को बोरो करने की रिक्वेस्ट भेज दी, यानी कि जो बुक का हमारा पूरी क्लास है उसके अंदर से उस बुक का स्टेटस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. उस बुक के स्टेटस को हम क्या चेंज कर रहे हैं, सेट टेकन. तो चौथा एक्शन ये हो रहा है. और जब सेट टेकन हो गया तो हमने साइन कर दिया कि जी ये बुक जो है अब इशू हो गई है. और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें पूरे अपने इसकी टाइम ऑर्डरिंग पता लगी कि पहले नंबर पे ये काम हुआ, दूसरे नंबर पे ये काम हुआ, तीसरे पे ये हुआ, चौथे पे ये काम हुआ. एक और चीज़ जो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हमें नज़र आ रही है वो ये डैश्ड लाइन है. ठीक है. ये हमें ये बता रही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सिस्टम के अंदर उसकी लाइफ लाइन क्या है. ठीक है. जिस तरह इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर हमारे तीनों जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, मेंबर, बुक और ये जो कॉपी है, इन सब की लाइफ लाइन दे आर देयर थ्रू आउट द, जब तक आपका सिस्टम चल रहा है तो ये एक्टिव है. एक्टिव तो नहीं है लेकिन हम कहेंगे कि ये दे एग्जिस्ट थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि इनकी लाइफ लाइन जो है वो कंप्लीट है. वेयर एज वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड्स कि आप ये लाइफ लाइन यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एट द रन टाइम. तो आप वो भी सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर बता सकते हैं कि जैसे आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी यू कैन डू अ क्रिएट रिक्वेस्ट एंड देन द ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड. लेकिन इस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम इज कि आपके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आप उन सबको शुरू में एक ही दफा लिख देते हैं कॉलम्स के अंदर,
जिस तरह हमने इस केस के अंदर किया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम तीनों को हमने एक साथ लिख दिया और तीनों की लाइफ लाइन हमने कह दिया जी लाइफ लाइन सबकी सेम है, ठीक है, तीनों रहेंगे थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन, और हमने फिर उसके अंदर शो करना शुरू कर दिया। और ओके जी, दिस इज अ बिट ऑन कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स। और ये जो हमारे बॉक्सेस होते हैं इनको हम कहते हैं एक्टिवेशन बॉक्सेस, ठीक है। मैंने आपको जितना पहले भी कहा था कि ये जो बड़ी सी रेक्टेंगल है ये एक्टिवेशन बॉक्स है। ये बताती है कि आपका जब एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर आप आए तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कितनी देर के लिए एक्टिव रहा, ठीक है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कितनी देर तक उसमें काम होता रहा। तो ये जितना इसका साइज होता है वो बताता है कि कितना टाइम लगा, ठीक है। जिस तरह अगर आप देखें तो ये जो लाइब्रेरी मेंबर का रिक्वेस्ट है बुक इशू कराने की, ये सबसे ज़्यादा देर तक एक्टिव रहा है, क्योंकि इसकी वजह क्या है, क्योंकि इसने ही बुक इशू करानी है, ठीक है। और बुक इशू कराने के लिए जब इसने रिक्वेस्ट भेजी है तो उसके लिए मल्टीपल काम होंगे, फिर इसको बुक इशू होगी, ओके। तो ये वाले शो कर रहा है कि इसके एक्टिविटी बॉक्स सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इट हैज़ रिमेन्ड एक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वेयर जो आपके बाकी हैं उनके अंदर एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए हुई, जिस तरह इसके अंदर इतनी देर के लिए हुई है, इसके अंदर इतनी देर के लिए हुई है। ओके जी, नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द सिंबल्स या जो नेमिंग कन्वेंशंस है कि हम जो ये सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जब ऑब्जेक्ट शो करते हैं या उनकी लाइफ लाइन शो करते हैं तो वो उनके एक्चुअली यूएमएल के अंदर उसको सिंबल क्या होते हैं। नॉर्मली जो आपका सिंटेक्स होता है वो क्या होता है कि पहले आप लिखते हैं इंस्टेंस नेम, ठीक है, और फिर आप लिखते हैं क्लास नेम, ठीक है। यानी कि इस केस के अंदर जिस तरह हमारी जो क्लास है, डेट जो है दैट इज आवर क्लास, और जो माई बर्थडे है दैट इज द ऑब्जेक्ट, यहाँ इसको आप कह दें इंस्टेंस नेम, ठीक है। अच्छा, नेम क्लासेस कंसिस्टेंटली विद योर क्लास डायग्राम, ठीक है जी। ये जो आपकी दिस शुड बी कंसिस्टेंट विद द क्लासेस इन योर सिस्टम डायग्राम, और इट इंक्लूड द इंस्टेंस नेम्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर रेफर्ड टू इन द मैसेजेस और व्हेन सेवरल ऑब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम एग्जिस्ट इन द डायग्राम। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर हम ये पिछली डायग्राम के ऊपर आए, अब इसके अंदर अगर देखें कि ये जो हमारा मेंबर था, ठीक है, दिस वाज आवर क्लास, और ये जो लाइब्रेरी मेंबर है ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमने यहाँ पे मेंबर से इसको रेफर किया है क्योंकि हर लाइब्रेरी मेंबर के लिए हमारा जो सीक्वेंस होगा वो सेम ही होगा, ठीक है। यानी कि वी हैव रेफर्ड द क्लास नेम विच इज द सेम जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा था, ठीक है। उसका मकसद ये है कि फॉर एवरी लाइब्रेरी मेंबर द सेम सेट ऑफ स्टेप्स वुड फॉलो, ओके जी। अच्छा, और जो एक और चीज़ जो आप ऑब्जेक्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं वो ये डैश्ड लाइन होती है, वो जिसको हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की लाइफ लाइन क्या है, ठीक है। और ये लाइफ लाइन बताती है कि कितनी देर के लिए ये ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। द लाइफ लाइन रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट्स लाइफ ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, यानी कि जो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो हम इंटरेक्शन शो कर रहे हैं वो बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की लाइफ कितनी होगी इस पूरे इंटरेक्शंस के अंदर। अच्छा जी, देन वी हैव मैसेजेस। मैसेजेस क्या होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो मैसेजेस होता है, और वो हम किससे, एजेस के ऊपर भेजते हैं, ठीक है, एजेस के ऊपर मैसेजेस जा रहे होते हैं। अच्छा जी, एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज परफॉर्म्ड एज अ मैसेज सेंट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। Simple operation called signaling RPC. If object 1 sends a message to another object 2, some link must exist between those two objects. इसके अंदर हम उसकी डिपेंडेंसी भी लिख सकते हैं और ये ऑब्जेक्ट्स सेम ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। अच्छा जी, अब ये जो आपका मैसेज होता है दिस इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय दिस सॉलिड एरो, ठीक है। यानी कि अभी हमने जो पिछली एग्जांपल भी देखी थी, जितने भी मैसेजेस थे वो इसके ऊपर जा रहे थे। इन मैसेजेस को फिर हम एनोटेट भी कर सकते हैं। वी विल सी हाउ। कुछ एग्जांपल्स हमने देखी कि हम इसके ऊपर पहली भी चीज़ तो हम ये लिखते हैं कि मैसेज क्या जा रहा है, ठीक है। जिस तरह अगर बोरो की रिक्वेस्ट आ रही है तो वो यूजुअली राइट जो हमने वर्ब्स आइडेंटिफाई किए थे यूजुअली दे आर रिटन ऑन दीज मैसेजेस, क्योंकि वो बताते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। वी कैन ऑल्सो एनोटेट देम विद सर्टन इन्फॉर्मेशन, जिस तरह हमने ओके का स्टेटस इन्फॉर्मेशन साथ भेजी थी, ठीक है। तो वी कैन हैव मल्टीपल इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन सेंड थ्रू दीज मैसेजेस। अच्छा जी, पहली बात तो क्या है, मैसेज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो बिटवीन द लाइफ लाइन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि आपके अगर यूँ दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए, ठीक है, लेट्स से ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए और ये उनकी लाइफ लाइन है, तो मैसेज इनके दरमियान यूँ एरोस के ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ लिखा होगा ABC व्हाटएवर। अच्छा, सेल्फ कॉल्स आर ऑल्सो अलाउड। सेल्फ कॉल का क्या मतलब है, जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल अगर आपको याद हो उसके अंदर हमने देखा था कि सेल्फ एरो का क्या मतलब है कि आप इसके अंदर भी यूं करके एक एरो आ सकता है, ठीक है। ये क्या बताता है कि आप इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और सेल्फ कॉल का क्या मकसद होता है, जिस तरह हम लाइब्रेरी मेंबर वाली क्लास के अंदर हम सबसे पहली चीज़ ये चेक कर रहे थे कि जो बंदा बुक इशू कराने की रिक्वेस्ट कर रहा है वेदर ही इज़ अ मेंबर ऑफ लाइब्रेरी और नॉट, ठीक है।
तो उसके अंदर अगर आप देखें तो दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड टू गो एनीवेयर एल्स, उसको अपनी ही क्लास से इंफॉर्मेशन लेकर देखना है कि वेदर ही इज अ मेंबर और नॉट, तो वी कैन डू सेल्फ कॉल्स। अच्छा जी, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर ऑब्जेक्ट टू प्रोसेस द मैसेज इज डिनोटेड बाय एन एक्टिविटी बॉक्स। ठीक है जी, ये जो एक्टिवेशन बॉक्स है ये बताता है कि अब इस वाले ऑब्जेक्ट को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए इसने इंटरेक्शन की है, तो ये जितनी देर के लिए इसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, ये उतनी देर तक, ठीक है। अब ये बेसिकली ये हमारा एक्टिवेशन बॉक्स हो गया, और ये अगर इसको आ गया तो यहाँ पे हम इसके लिए एक्टिवेशन बॉक्स बना देते हैं। ठीक है जी, अ मैसेज इज लेबल्ड मिनिमम विद द मैसेज नेम, यानी कम से कम आपके जो मैसेज के ऊपर मैसेज का नाम होना चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आर्गुमेंट्स एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, जिस तरह आप उसके अंदर कंडीशंस भेज सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि आइटरेशन कितनी दफ़ा होनी चाहिए, इट कैन बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो मिनिमम मैसेज के ऊपर मैसेज का नाम होना चाहिए। अ सिस्टम इन अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम नो मैसेज कैन बी विदाउट अ नेम, एवरी मैसेज शुड हैव सम काइंड ऑफ अ नेम, यानी कि पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन और या दो ऑब्जेक्ट के दरमियान किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, इट शुड ऑलवेज बी देयर। ओके, नेक्स्ट वी हैव द रिटर्न वैल्यूज। जो आपके रिटर्न मैसेजेस होते हैं दे आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड एरोज। ठीक है जी, बट दे आर ऑप्शनल। ठीक है, एज द स्लाइड सेज कि ऑप्शनली इंडिकेटेड यूजिंग अ डैश्ड एरो विद अ लेबल इंडिकेटिंग द रिटर्न वैल्यू, क्योंकि ये आपको क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि रिटर्न इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है ऑब्जेक्ट जो, फॉर एग्जांपल इसके अगर हम यहाँ पे एग्जांपल भी बना लें कि ये हमारे दो ऑब्जेक्ट्स थे और ये उनकी लाइफलाइन थी और इसका ये एक्टिवेशन बॉक्स था, यहाँ पे ये गया और इसने एक नया एक्टिवेशन बॉक्स बना, और इससे अगर कोई वापस इन्फॉर्मेशन आएगी तो वी विल रिप्रेजेंट दैट बाय अ डैश्ड एरो, लेकिन इसके ऊपर फिर रिटर्न वैल्यू भी होनी चाहिए। और नॉर्मली हम इसको क्यों नहीं मॉडल करते, क्योंकि एट टाइम्स इट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने मैसेज भेजा है गेट टोटल, तो हमें पता है वापसी पे आपके पास टोटल ही आना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाह रहे हैं कि कितनी बुक्स इस वक्त इशूड है लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, आपने गेट टोटल का मैसेज भेजा, तो अब रिटर्न में तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स ही आनी है, तो यू डू नॉट नीड टू एक्चुअली स्पेसिफाई इट। तो नॉर्मली हम ये रिटर्न मैसेजेस शो नहीं करते। और व्हेन डू वी एक्चुअली डू इट, मॉडल अ रिटर्न वैल्यू ओनली व्हेन यू नीड टू refer to it elsewhere, for example as a parameter passed in another message. It will be ideal to use it उस केस के अंदर जब हमें वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो वापस आ रही है वो किसी और मैसेज के अंदर एज अ पैरामीटर पास करनी है, देन इट इज एडवाइजेबल टू एक्चुअली यूज इट। ओके जी, नाउ दिस इज हाउ वी मॉडल रिटर्न वैल्यूज। अच्छा जी, देन वी हैव टू काइंड्स ऑफ मैसेजेस। एक मैसेजेस को हम कहते हैं सिंक्रोनस मैसेजेस, द अदर काइंड ऑफ मैसेजेस दे आर एसिंक्रोनस मैसेजेस। अच्छा, सिंक्रोनस मैसेजेस क्या करते हैं कि सिंक्रोनस मैसेजेस जो हमारा कॉलर होता है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने का क्या मतलब है कि जब तक इसको इसका रिप्लाई नहीं मिलेगा, फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर ये जो ए क्लास है ये क्लास बी को भेज रही है कि डू यू अंडरस्टैंड, और जब तक कि ये इसका रिप्लाई नहीं आएगा तो क्लास ए इज ब्लॉक्ड, इट कैन नॉट डू एनी अदर थिंग। ठीक है, तो सिंक्रोनस मैसेजेस भी हम भेज सकते हैं और एसिंक्रोनस मैसेजेस भी भेज सकते हैं। एसिंक्रोनस मैसेजेस के केस के अंदर ये जो कॉलर होगा इट विल नॉट वेट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन होती है दैट इज एसिंक्रोनस। ठीक है, लेकिन वी कैन मॉडल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। हमारे जो मैसेजेस होते हैं वो सिंक्रोनस मैसेज होते हैं, यानी कि जो आपका कॉलर होता है यूजुअली थ्रू दी सिंक्रोनस मैसेजेस हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाह रहा था कि मेरा फॉर एग्जांपल मैं ऑथेंटिकेशन चेक करना चाह रहा हूँ और मेरे दो ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए हुए, एक यूजर का ऑब्जेक्ट है और एक मेरा सिस्टम का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर्ड है, एंड आई वांट टू व्हेनेवर समबडी सेंड्स लॉगिन एंड पासवर्ड, तो मैं ऑथेंटिकेशन के लिए एक मैसेज भेज देता हूँ कि ऑथेंटिकेट, उसमें पैरामीटर जा रहे होते हैं लॉगिन पासवर्ड। तो जब तक मुझे उसकी कॉल वापस नहीं आएगी कि ये लॉगिन का स्टेटस ओके है कि नहीं है, तब तक आई शुड ब्लॉक दैट यूजर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस सिंक्रोनस मैसेजेस टू इंडिकेट कि कब आपका ब्लॉकर कब आपका जो कॉलर है वो ब्लॉक हो जाएगा उस इंस्टेंट के लिए। ओके जी, another concept that we discussed briefly when we discussed the first example on this system sequence diagram was object creation. इस केस के अंदर क्या होता है कि हमारे ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने आपको कहा था सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग द सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम इज कि आप के ऑब्जेक्ट्स शुरू से ही बने हुए हैं। इस केस के अंदर क्या होता है, हमारी जो दोनों ऑब्जेक्ट्स की लाइफ लाइन है वो इस पूरे इंटरेक्शन के अंदर है। ठीक है, लेकिन दूसरी मैंने आपको क्या चीज़ कही थी कि हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल
इस केस के अंदर जब क्रिएट की रिक्वेस्ट आ रही है तो हम इसको कंस्ट्रक्टर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कंस्ट्रक्टर भी है और इसके अंदर फिर हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ए से बी को जब कॉल जा रही है तो आप बी को क्रिएट ही उस वक्त कर रहे हैं जब बी की ज़रूरत है। तो दिस इज़ द डिफरेंस कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन रन टाइम पे होने का क्या मतलब है कि व्हेन यू नीड टू इंटरेक्ट विद क्लास बी देन यू क्रिएटेड एन इंस्टेंट, वेयर एज इस केस के अंदर ए और बी के इंस्टेंस शुरू से ही बने हुए थे एंड देन यू आर कम्युनिकेटिंग बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑन रन टाइम और ऑब्जेक्ट क्रिएशन आपने शुरू से ही की हुई है। सिमिलरली यू कैन पास द डिस्ट्रक्शन मैसेजेस, जिसके अंदर आप बता सकते हैं कि जी ऑब्जेक्ट बी को आप डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। उसका क्या मतलब होगा कि जब आप डिस्ट्रॉय का मैसेज भेजेंगे तो उसके बाद वो ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। यानी कि दिस इज अ वेरी गुड, दिस एक्चुअली शोज कि किस तरह से होगा कि यू हैव अ क्लास ए और इसी तरह इसको अगर हम क्रिएट से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो वो कैसे होगा कि फॉर एग्जांपल ये हमारा इसकी लाइफलाइन थी, ठीक है, और जहाँ पे हमने इसको भेजी रिक्वेस्ट, ओके वी शुड डू दिस अगेन क्योंकि देयर इज़ अ स्लाइट प्रॉब्लम। अच्छा, किस तरह से होगा कि फॉर एग्जांपल हमारा ये ए ऑब्जेक्ट था और ये इसकी लाइफलाइन है, ठीक है, ये हमारा इसका एक्टिवेशन बॉक्स है। यहाँ पे हमने इसको भेजी एक क्रिएट की रिक्वेस्ट और यहाँ पे फिर इसने क्रिएट के अंदर बी को क्रिएट किया, ठीक है, और फिर बी के साथ इसकी जो भी कम्युनिकेशन हुई वो यहाँ पे हुई, ठीक है। बी को इसने कुछ मैसेजेस भेजे, बी से इसको कुछ रिटर्न के अंदर वैल्यूज़ आई। यहाँ पे फिर इसने बी को क्या कह दिया कि डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय के अंदर क्या होगा कि अगर आप इसको देखें तो हमारा जो नॉर्मल इसका फ्लो है वो तो नीचे तक चल रहा है, यानी कि ये अभी एक्टिव, लेकिन ये वाला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो वी कैन एक्चुअली स्पेसिफाई कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी देर के लिए हमारे सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर उसकी लाइफलाइन थी, ठीक है। तो वी डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स व्हेन वी सारे ऑब्जेक्ट्स हमें शुरू में डिफाइन करने की जरूरत नहीं है या उनको शुरू में उनके इंस्टेंसेस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। वी कैन डू इट एट द रन टाइम, यानी कि जब जरूरत हुई तब वी कैन गिव अ क्रिएट रिक्वेस्ट और सिमिलरली वी कैन डिलीट और डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट व्हेन एवर वी डोंट नीड दैट इन अ पर्टिकुलर इंटरेक्शन। ओके जी, देन वी सॉ कि हम मैसेजेस के ऊपर कंट्रोल इन्फॉर्मेशन भी भेज सकते हैं। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल we want to pass a message or we want to have an interaction between two objects based on a certain condition, ठीक है, कि if let's say a certain flag is set तो then send the message from A to B, ठीक है। तो this is an example of control information। और control information का जो syntax होता है वो क्या होता है कि usually we have square brackets के अंदर हमारी ये control information आ जाती है। अब ये मैसेज सिर्फ उसी वक्त जाएगा जब ये ओके होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक फ्लैग है और इसकी दो वैल्यूज हैं, ओके और नॉट ओके, ठीक है। तो ये जो बोरो वाला मैसेज है ये फ्रॉम ए टू बी उसी केस के अंदर जाएगा जब ये ओके होगा। अगर ये ओके नहीं है तो ये वाला कॉल नहीं होगी, ठीक है। तो वी कैन हैव दीज कंडीशंस इन अ मैसेजेस। अनदर थिंग दैट वी कैन हैव इज आइटरेशन। आइटरेशन को हम कैसे शो करते हैं? द सिंटेक्स इज दैट वी हैव अ स्क्वायर ब्रैकेट और उसके ऊपर हमारा ये स्टैरिक है जो कि बताता है कि ये कितनी दफ़ा आइटरेट करना है, और देन वी हैव अ मैसेज लेबल और द मैसेज इज सेंट मेनी टाइम्स टू पॉसिबली मल्टीपल रिसीवर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी कि ये मल्टीपल रिसीवर ऑब्जेक्ट्स को मैसेजेस जा रहे होते हैं, यानी कि क्योंकि हम अपने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर क्लास भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंस्टेंसेस भी बना सकते हैं। तो ये आइटरेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस को वो मैसेजेस जा रहे हैं। ओके जी, जिस तरह अगर आप ये देखें कि इफ़ वी हैव अ कंपाउंड शेप, जिस तरह हमारी नॉर्मली ट्राइंगल जो होती है, ठीक है, दैट कैन बी यूज टू ड्रॉ वेरी कॉम्प्लेक्स शेप्स, ठीक है। जिस तरह इस तरह अगर आप ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ते जाएं, ठीक है, तो यू कैन कम अप विद अ सर्कल और यू कैन कम अप विद एनी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ट्राइंगल्स हैं, लेट्स से। ओके, नाउ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप। जिस तरह इस वाले इंस्टेंस के अंदर क्या हो रहा है कि यू हैव अ कंपाउंड शेप, ठीक है, यू हैव दिस ऑब्जेक्ट और आपने एक्टर इवेंट जनरेट किया जिसमें अंदर आपने कहा है कि जी ड्रॉ करो, ठीक है। अब ड्रॉ के अंदर आपने लिख दिया स्टैटिक ड्रॉ, यानी कि उस वक्त तक इसको कॉल करते रहो। हमने यहाँ पे ये नहीं बताया कितनी दफ़ा कॉल करना है जब तक कि वो क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जी 7 दफ़ा हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा शायद एक सर्कल बन जाएगा डिपेंडिंग ऑन द। तो हमने एक शेप की क्लास है, ठीक है, जिसके अब ये मल्टीपल इंस्टेंसेस को जा रहा है, यानी कि अगर 7 ट्राइंगल्स बनी है तो देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ दिस क्लास दैट वी हैव एक्चुअली कॉल्ड, ठीक है। और ड्रॉ होके वी विल बेसिकली ड्रॉ द होल थिंग। इसी तरह ये एग्जांपल है कि इफ़ यू आर अ ड्राइवर एंड यू आर वेटिंग फॉर द बस टू बी फुल,
यानी कि इसके अंदर हमने 7 कंडीशन भी लिख दी है। पहली बात तो ये बता रहा है कि ये आइटरेशन है, यानी कि जो स्टैटिक का स्टार्ट है ये बता रहा है कि देयर इज आइटरेशन, और ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखी है ये बता रही है कि कितनी देर तक ये आइटरेशन चलनी चाहिए, यानी कि ये बता रही है नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हमने क्या इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिया कि ड्राइवर शुड वेट अंटिल द बस इज फुल। सो वी नो दैट दिस इज एन आइटरेशन एंड वी नो कि ये कितनी देर तक इसको आइटरेट करना है। ठीक है जी, और ये जो एक्सप्रेशन का सिंटेक्स है इट्स नॉट स्टैंडर्ड। ठीक है, यू कैन राइट इट इन अ नंबर ऑफ वेज। अच्छा जी, द कंट्रोल मैकेनिज्म्स ऑफ द सीक्वेंस डायग्राम सफाइस ओनली फॉर मॉडलिंग सिंपल अल्टरनेटिव्स। ठीक है जी, consider drawing several diagrams for modeling complex scenarios. अच्छा, this is something very interesting and I should emphasize it a lot कि when you say system sequence diagram तो उसका ये मतलब नहीं होता कि पूरे सिस्टम की एक ही सीक्वेंस डायग्राम है। In a when you are modeling a system तो you can have multiple system sequence diagrams। ठीक है, यानी कि in a complex system अगर आप बहुत मुश्किल किस्म का कोई सिनेरियो यानी कि multiple interactions आइडियली आपके क्या हो सकता है कि फॉर एवरी इंटरेक्शन यू कैन हैव अ सीक्वेंस डायग्राम। ठीक है, यानी कि आप लॉग इन कर रहे हैं तो यू कैन हैव अ सीक्वेंस डायग्राम फॉर दैट। आप लॉग इन के बाद कुछ और काम कर रहे हैं, फॉर आप रिपोर्ट्स जनरेट कर रहे हैं, यू कैन हैव अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम फॉर दैट। सो फॉर एवरी इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यू कैन हैव सेपरेट सीक्वेंस डायग्राम्स। नाउ देयर आर केसेस, कुछ केसेस के अंदर दोज इंटरेक्शंस आर फेयरली सिंपल, तो आप क्या करते हैं मल्टीपल इंटरेक्शंस को कंबाइन कर देते हैं एंड देन यू हैव मल्टीपल इंटरेक्शंस इन अ सीक्वेंस डायग्राम। लेकिन if a system diagram is getting complex that you can have multiple diagrams। ओके जी, now this is an example, ये वही एग्जाम्पल है जो कि हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं अपने इस और आपकी प्रेसमैन की जो बुक है जो आपको मैंने अपने कोर्स के लिए रेफर भी की थी, प्रेसमैन की प्रैक्टिशनर्स ऑन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसके अंदर ये कंट्रोल पैनल वाली एग्जाम्पल। द ऑब्जेक्ट्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड इज, जो कि हमने अभी पिछले ग्रामेटिकल पार्ट्स करते हुए भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किए थे। वन इज होमोनर, the second one is control panel, then we have system and then we have sensors। so these are our objects, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, अच्छा जी। अब शुरू में हमने कह दिया कि जी हमारा सिस्टम जो है वो किस स्टेट के अंदर है, रेडी स्टेट के अंदर है। अच्छा, अब होमओनर आया, ठीक है, और व्हाट होमओनर इज डूइंग इज, ठीक है, ही हैज एंटर्ड द पासवर्ड। ठीक है, और हमारा जो कंट्रोल पैनल है इट इज बेसिकली रीडिंग। व्हेन इट हैज रेड दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो द नेक्स्ट थिंग दैट इज डूइंग इज इट्स बेसिकली, अच्छा ये जो हमने रीडिंग, कंपेयरिंग, लॉग्ड और सेलेक्टिंग किया ना, दिस कैन, ये करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन हैव अ बिग एक्टिवेशन बॉक्स हियर। ठीक है, ठीक है, जो कि बेसिकली यही काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या काम किया कि ए आया, उसने पासवर्ड एंटर किया। ठीक है, देन व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू चेक विद द सिस्टम कि ये जो पासवर्ड था ये करेक्ट था कि नहीं था। ठीक है, अब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सिंक्रोनस कॉल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि जो पासवर्ड था वो करेक्ट था कि नहीं था। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस कॉल, क्योंकि हमारा ये वाला ऑब्जेक्ट अब कुछ नहीं कर सकता जब तक कि इसका रिजल्ट ना आ जाए। जब भी रिजल्ट आया, हमने देखा कि जी पासवर्ड इज करेक्ट, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट कर दी एक्टिवेशन की। ठीक है, और हमारे जब तक वो रिक्वेस्ट जितनी देर लगेगी कंप्लीट होने में, और हमने इसका रिजल्ट भी वापस भेज दिया। इसके अंदर हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन हुई है सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर, दैट इज सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पिछला वाला ऑब्जेक्ट था वो उतनी देर के लिए ब्लॉक रहा है। और एक और चीज़ जो इस सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर है कि सारे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की लाइफ लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और सबकी लाइफ लाइन एंड तक है। ठीक है, यानी कि ऑल दी ऑब्जेक्ट्स दे वर क्रिएटेड एट द बिगिनिंग, और उन सब की लाइफ लाइन पूरी इंटरेक्शन के अंदर देयर लाइफ दे हैव उनकी पूरी इंटरेक्शन के अंदर दे आर स्टेड इन द सिस्टम। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, दिस इज अनदर एग्जांपल। ठीक है, कि वी हैव दिस वायलेशंस डायलॉग, वायलेशंस कंट्रोलर, वायलेशन डीबी प्रॉक्सी, ये हमारी क्लासेस हैं। ठीक है, वी हैव अ क्लर्क हियर जो कि सबसे पहले क्या करता है, लुकअप करता है। ठीक है, और इट्स बेसिकली पासिंग दिस। ठीक है, इसके अंदर एक दो चीज़ें जो इंटरेस्टिंग हो रही हैं पिछली सीक्वेंस डायग्राम से ज़रा डिफरेंट है। वो एक काम क्या हो रहा है कि वी आर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल पहले हमें वायलेशन की आईडी मिल गई। ठीक है, और उस आईडी के बेसिस के ऊपर हमने एक और क्लास का ऑब्जेक्ट
एक इंस्टेंस क्रिएट किया जिसको हमने कह दिया ट्रैफिक वायलेशन, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास यहाँ पर वापसी के भी डिस्प्ले मैसेज जो हमारे रिटर्न मैसेजेस हैं वो भी शो कर रहे हैं। तो इस सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर भी हमारे पास क्या क्या चीज़ें, वी हैव एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, कि वी आर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके, एंड सिमिलरली वी हैव, इसके अंदर हमारे पास डिलीशन का इंस्टेंस नहीं है, लेकिन वी हैव दीज मैसेजेस हेयर, और हमने ये वी हैव दिस रिटर्न मैसेज और वैल्यू भी उसकी आ रही है इसके अंदर। सो वी हैव डिफरेंट थिंग्स इन दिस सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम एज वेल। ओके जी, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रिंट रिक्वेस्ट। जिस तरह फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लाइंट और उसने क्या किया, ही हैज रिक्वेस्टेड फॉर प्रिंट, ठीक है। प्रिंट के अंदर उसने जो दो पैरामीटर्स इस मैसेज के अंदर पास किए, एक तो जो डॉक्यूमेंट उसने प्रिंट करना है और एक कि उसने अपनी आईडी वगैरह पास किया कि कौन सा क्लाइंट है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि पहला काम तो ये प्रिंट सर्वर क्या कर रहा है कि इट्स अ सेल्फ कॉल। ये वाला जो एरो है ये शो कर रहा है कि देयर इज अ सेल्फ कॉल। आपने उस जो प्रिंट की जॉब थी उसको आपने इनक्यू कर लिया, ठीक है, और आपने जब इनक्यू किया तो आपने क्यू की क्लास के अंदर वो जॉब भी सेव कर दी है, ठीक है। दूसरा काम आपने क्या किया है कि आपने उस जॉब को डी क्यू कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक क्यू मेंटेन हुई हुई है, ठीक है, जितनी भी जॉब्स आती जा रही हैं हम उसके अंदर डालते जा रहे हैं, और जैसे ही हमारा जॉब आती जा रही है उनको हम यहाँ से अंदर सेव करते जा रहे हैं, और जैसे ऊपर से निकलती जा रही हैं तो हम उनको डी क्यू करते जा रहे हैं। जब भी हमारी जॉब डी क्यू हो गई तो हमने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, प्रिंटर को भेज दिया, और हमारा फिर स्टेटस हमारे पास आ गया कि हमारा प्रिंटिंग हुई है कि नहीं हुई, और वी हैव सेंड द स्टेटस टू द एक्टर। अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के अंदर देखें तो वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स और 4 क्लासेस। एक तो हमारा जो है वो ये इनिशिएटर क्लास है, ठीक है, इसको हम इनिशिएटर क्लास कहते हैं क्योंकि इसने ये पूरा इंटरेक्शन स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर क्लाइंट प्रिंट की रिक्वेस्ट ही ना भेजता तो हम शायद ये इंटरेक्शन ना बना सकते, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई एक्टर्स इन अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, क्योंकि एक्टर्स ही किसी इंटरेक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देन वी हैव अ प्रिंट सर्वर। प्रिंट सर्वर क्या करता है कि वो क्लाइंट्स की प्रिंट रिक्वेस्ट को चेक करता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम और भी इंटरेस्टिंग कर सकते थे इसी एग्जांपल को। जिस तरह प्रिंट सर्वर के ऊपर जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी ना, तो हम एक काम ये चेक कर सकते थे कि ये क्लाइंट जो है वेदर ये प्रिंट की रिक्वेस्ट भेज भी सकता है कि नहीं भेज सकता। यहाँ इसका प्रिंट का कोटा कंप्लीट तो नहीं हो गया, और उसकी बेस के ऊपर हम यहाँ पे एनक्यू करने से पहले हम एक स्टेटस भी भेज सकते थे कि अगर ये ओके होगा तो फिर ही क्यू करे, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट दिस इन्फॉर्मेशन। इसी तरह ये जो क्यू वाली क्लास थी इसको हम यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते थे, ठीक है। तो सिमिलर वी कुड हैव डन इट in a different way. What I would do, I would try to make this diagram in a different way so that you know, okay, the same system sequence diagram can be done slightly differently. Okay, what I would do, I would make the same system sequence diagram, lekin I will only create the objects when they are required. So you can see that the same system sequence diagram can be done in a different way. Okay, let's do it here. Okay, we have our client here, ठीक है। क्लाइंट को नॉर्मली हम इस तरह से शो करते हैं जो हमारे पूरे सीक्वेंस को इनिशिएट करता है, ठीक है जी। देन वी हैव जिसको हमने कहा था प्रिंट सर्वर। फिर हमारी एक क्लास है जिसको हमें अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम सॉरी। ओके जी, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि हमने इसकी लाइफलाइन क्या है, इसकी लाइफलाइन हम कहते हैं कि थ्रू आउट द इंटरेक्शन रहेगी, ठीक है। अब क्लाइंट ने क्या रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी प्रिंट की कि ही नीड्स टू प्रिंट समथिंग। उसके अंदर उसने 2 चीज़ें भेजी, एक तो डॉक्यूमेंट पैरामीटर आया और दूसरा पैरामीटर क्या भेजा, क्लाइंट ने अपनी इंफॉर्मेशन भेज दी। अच्छा, अब ये वाली जो प्रिंट सर्वर क्लास है ये एक सेल्फ कॉल भी कर सकती है। सेल्फ कॉल क्या करेगी, वो चेक करेगी कि इसको हम कह देते हैं कि दिस वुड रिटर्न कैन प्रिंट का एक स्टेटस है जो कि बेसिकली बताएगा कि इसका कोटा कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ। नाउ दिस विल सेट अ फ्लैग। इफ दिस फ्लैग इज ओके तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम पहले एक क्रिएट की रिक्वेस्ट भेज दी हमने, ठीक है। अब क्रिएट के अंदर हमने क्या किया कि वी विल क्रिएट दिस क्लास जिसको हम कह रहे थे क्यू की क्लास, ठीक है। ओके, अब जब हमने इसको क्रिएट किया तो ये क्रिएट हो गया और यहाँ पे हमने इसकी लाइफलाइन बना दी। अब हो रहा क्या है यहाँ पे
कि यहाँ पे अब हमारे इससे एक और कॉल गई जिसने इसको कहा कि जी ये जो जॉब आई थी ना इसको आप क्यू कर लें, जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट आया था उसको आप क्यू कर लें, ठीक है, इसे लिख दिया क्यू जॉब, ठीक है। अच्छा, फिर आपने रिक्वेस्ट की कि जी इसको डी क्यू कर दें, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया। जब ये डी क्यू हो गया तो फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही बंदा प्रिंट भेज रहा है तो हम यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय का भी भेज सकते हैं मैसेज। जब हमने इसको डिस्ट्रॉय का मैसेज भेजा तो यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट पे ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे हमने फिर उसको प्रिंट की रिक्वेस्ट भेज दी तो हमारा यहाँ पे लेट्स से हमने पहले क्रिएट किया प्रिंट सर्वर, प्रिंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे फिर प्रिंट हुआ। अच्छा, नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, इस सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर मसला क्या है? मसला ये है कि हम जो अपना सिस्टम मॉडल करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि मल्टीपल क्लाइंट्स प्रिंट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। अब इस केस के अंदर अगर हम क्यू का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे और प्रिंट सर्वर का यहाँ जो प्रिंटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो दिस वुड बी रॉन्ग। ये गलत क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो क्यू है या आपके जो प्रिंट प्रॉक्सी के जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं दे शुड बी देयर थ्रू आउट, क्योंकि आपका सिस्टम ऐसा होगा कि क्यू भी रहे, प्रिंट सर्वर भी है और सब चीज़ें थ्रू आउट रहेंगी आपके इंटरेक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द करेक्ट वे, इस स्लाइड के अंदर दिस इज द करेक्ट वे ऑफ शोइंग, क्योंकि ये क्यू और प्रिंट प्रॉक्सी इनको आप बीच में नहीं बनाएंगे। वो गलत क्यों होगा? क्योंकि आपकी क्यू इज ऑलवेज देयर, दिस इज नॉट डिपेंडेंट कि कौन सा क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है। यानी कि द क्यू इज ऑलवेज देयर, द प्रिंटर प्रॉक्सी इज ऑलवेज देयर, ये बेसिकली दे आर ऑलवेज देयर एंड दे आर वेटिंग फॉर द जॉब्स, ठीक है। तो अगर हम इसको बीच में क्रिएट करते हैं तो वो गलत होगा, वो तो सिर्फ ये शो करेगा कि कोई एक ही क्लाइंट है वही रिक्वेस्ट भेज सकता है, ठीक है। तो इफ़ यू आर मॉडलिंग द सिस्टम जिसके अंदर आप मल्टीपल लोगों के प्रिंट के सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनाना चाह रहे हैं तो उस केस के अंदर यू नीड टू क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट्स एट द बिगिनिंग, ठीक है। सो आई थिंक दिस वुड हैव slightly kind of explained why we in which cases it is advisable to create the objects at the beginning and in the which cases it is not, ठीक है। So in this particular scenario, in my opinion, it is advisable that you have or you create these objects at the beginning, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफलाइन थ्रू आउट द इंटरेक्शन एक्टिव रहेगी, ठीक है। So this particular not advisable in this case, ठीक है। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये जो क्यूइंग है यानी जो प्रिंटर प्रॉक्सी है ये वेट नहीं कर रहे किसी एक रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, दे आर फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, ठीक है। तो इसलिए इनको हम शुरू से ही बना देते हैं। लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि डिफरेंट नोटेशन कैसे हो सकती है कि आप क्रिएट की रिक्वेस्ट भेज के ऑब्जेक्ट को उसी वक्त क्रिएट करें जब उसकी ज़रूरत है, तो यू कैन शो अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम इन दैट वे। और यूजुअली वो जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है दैट इज़ एडवाइजेबल, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल कि आप ऑब्जेक्ट को उसी वक्त क्रिएट करें इंटरेक्शन के अंदर जब आपको उसकी ज़रूरत हो। ओके जी, लेट्स हैव अ क्विक समरी ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड इन टुडेज लेक्चर। वी स्टार्टेड ऑफ विद यूज केस डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। हमने देखा कि हम यूज केस डिस्क्रिप्शन को, पहली बात तो ये है कि व्हाई वी नीडेड टू डिस्कस यूज केस डिस्क्रिप्शन इन सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। तो वी सॉ कि यूज केसेस आर यूज्ड इन नंबर ऑफ वेज। पहली चीज़ जो हमें यूज केस बताते हैं वो हमें बताते हैं एक्टर्स बता देते हैं, ठीक है। और एक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स, क्योंकि कोई भी इंटरेक्शन जब ऑब्जेक्ट्स के दरमियान स्टार्ट होती है तो वो एक एक्टर ही स्टार्ट करता है। समबडी interacts with the system and then the different objects starts communicating with each other. So that's why we need use case descriptions whenever we are discussing system sequence diagrams, क्योंकि हमें actors चाहिए होते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें use cases provide करते हैं, we through the description and by doing a grammatical parse we identify the objects, ठीक है। और ये objects हम कैसे निकालते हैं? हम nouns identify करते हैं, उन nouns को हम एक सर्टन क्राइटेरिया से पास करते हैं जो भी हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और उससे हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं, ठीक है। ये दूसरा काम हो गया यूज केस के डिस्क्रिप्शन का। तीसरा जो हमारा काम होता है वो हम कहते हैं कि हम ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और दीज ऑपरेशंस दे आर एक्चुअली द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। एंड वी यूज ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स टू मेक सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स, ठीक है जी। कि दीज ऑब्जेक्ट्स दे आर ट्रीटेड एज द क्लासेस, जो हमने कहा कि हम कॉलम्स के ऊपर शो करते हैं, ठीक है।
और जो ऑपरेशंस होते हैं दे आर शोन ओवर द मैसेजेस, यानी कि जब भी मैसेजेस दो ऑब्जेक्ट के दरमियान पास होगा तो जो मैसेज नेम होगा दैट एक्चुअली शोज व्हाट काइंड ऑफ एन ऑपरेशन इज हैपनिंग और व्हाट काइंड ऑफ एन इंटरेक्शन इज ऑकरिंग बिटवीन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। देन वी सॉ के सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम्स की नोटेशन क्या होती है, ठीक है। उसके अंदर लेट्स क्विकली समराइज इट कि नॉर्मली जो हमारी ऑब्जेक्ट्स या हमारी क्लासेस होती हैं, अगर हमने सिर्फ क्लास लिखी है तो हम क्लास को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसका पर्टिकुलर इंस्टेंस है तो हम शायद ऊपर लिख देंगे लाइब्रेरी मेंबर। अब ये जो है ये इंस्टेंस नेम है एंड दिस इज द क्लास नेम, ठीक है। फिर आप हर ऑब्जेक्ट की लाइफलाइन बना देते हैं इंटरेक्शन के अंदर। ये जो पूरी डैश्ड एरो है दिस इज कॉल्ड लाइफलाइन, ठीक है। ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट पूरी आपकी इंटरेक्शन के अंदर कब तक रहेगा, ठीक है। देन वी सॉ कि देयर कैन बी डिफरेंट मैसेजेस दैट आर पास्ड बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और उस मैसेजेस के ऊपर हमने देखा कि मैसेजेस के ऊपर जो मिनिमम इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, उस मैसेज का नाम होगा, ठीक है। फिर हम इसके अंदर और क्या क्या भेज सकते हैं, वी कैन हैव द लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हियर, ठीक है। वी कैन अटैच कंडीशंस हियर, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये काम करना है कि नहीं करना, और वी कैन आल्सो हैव आइटरेशंस, और ये जो स्टैटिक का साइन है ये बेसिकली बताता है कि ये मैसेज कितनी दफ़ा होगा, ठीक है। एंड दिस इज टेलिंग कि व्हाट इज द कंडीशन, किस कंडीशन के ऊपर दिस मैसेज वुड बी ट्रू। ओके जी। देन देयर वर कपल मोर थिंग्स दैट वी डिस्कस इन सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। एक तो हमने कहा था कि देयर आर टू वेज ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। वन थिंग दैट यू कैन डू इज दैट व्हेन यू क्रिएट द सीक्वेंस डायग्राम तो आप सारे ऑब्जेक्ट स्टार्ट में क्रिएट कर दें। दूसरी चीज़ क्या थी कि आप ऑब्जेक्ट्स उस वक्त क्रिएट करें जब आपको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। जिस तरह ये जो हमने अभी साइड पे ड्राइंग की इसके अंदर हमने लाइब्रेरी मेंबर और बी जो क्लासेस थी हमने स्टार्ट में क्रिएट कर दी, लेकिन जो दूसरा था उसके अंदर क्या था कि आपका ये एक ए है और ए का आपने यहाँ पे था, और जब आपको बी की ज़रूरत पड़ी तो आपने इसको एक क्रिएट की रिक्वेस्ट भेज दी तो तब बी क्रिएट होगा, और फिर आप उसको एक डिस्ट्रॉय की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ अनदर वे। और एक चीज़ जो मैंने शायद नहीं डिस्कस की दैट वाज एक्टिवेशन बॉक्स। ये एक्टिवेशन बॉक्स ये बताता है कि ये मैसेज को प्रोसेस बी को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर डिफरेंट चीज़ क्या है, ये हमें एक तो बताती है टाइम ऑर्डरिंग कि कौन सा अगर एक इवेंट आ गया है उस इवेंट की बेस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंटरेक्शन किस ऑर्डर के अंदर हो रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और किस ऑर्डर में हो रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट उस काम को करने के लिए कितना टाइम लगा रहा है। दिस इज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. In the next lecture, I will try to go through a couple of examples of system sequence diagrams so that we can just grasp a bit more about system sequence diagrams, and I will try to come up with examples जिसके अंदर we will create objects when they are required, and we'll see a couple of more examples. Inshallah, they will help us clarify, or they will help in explaining the different things that are different notations of system sequence diagrams. Inshallah, till then take care and Assalamu alaikum.